Okay, so we are going to discuss the uses of the. So the जो होता है आपने a पढ़ा था कि when you are putting a or an before the proper nouns when they are used in common noun as a common noun in the sentence, or when you don't know the person you're speaking about, आप उस person के बारे में नहीं जान रहे हैं जिसके बारे में आपको बात कर रहे हैं. Okay, so if you look in the example, यहाँ पर दो चीजें हैं जिसको पहले इंट्रोड्यूस किया गया है. They are introduced first in the sentence and then afterwards when we are talking about the same object, then उसके आगे हमने the लगाया सेंटेंस में. फॉर एग्जाम्पल, she found a purse. यहाँ देखिए a purse लिखा गया है because it is introduced. The object is first introduced. Then in the next line continuing this is the purse contain a golden chain. Here पर्स जो है उसको पहले ही इंट्रोड्यूस कर दिया गया है, तो नेक्स्ट लाइन में जब हम द ये लगा रहे हैं, इससे ये इंडिकेट हो रहा है कि जिस पर्स को हमने इंट्रोड्यूस किया था फर्स्ट लाइन में, उसी पर्स के बारे में हम बात कर रहे हैं. अगेन यहाँ अ गोल्डन चेन इज इंट्रोड्यूस इन द सेकेंड लाइन एंड सेम गोल्डन चेन इज व्हेन टॉक्ड अबाउट इन द नेक्स्ट फॉलोइंग सेंटेंस, उसके आगे द लगाया गया है बिकॉज यू आर ऑलरेडी इंट्रोड्यूस टू दैट. So here the purse and the golden chain because they are already introduced. Now, as you can see, यहाँ पर रेफरेंस जब दिया गया है आपको, ये रेफर किया गया है. क्या रेफर किया गया है? While speaking of a particular person or thing or one already referred to. That means when you're talking about a particular person that you know, the particular person particular तभी रहेगा जब आप उनके बारे में जान रहे हैं. When you don't know the person, so you are not talking about anyone particular. ठीक है, you are talking in general that there might be someone whose name is Ayush, there might be someone whose name is Amit. Any person you're making a comment or making a statement using a general form. ठीक है, वो जो अमित है या जो आयुष है इस सेंटेंस में, वो एक प्रॉपर नाउन नहीं है बिकॉज you do not know the person or you are not talking about someone particularly. तो वहां पर जब आप ये बात बोल रहे हैं तो इसका मतलब ये होता है that you do know the person, you're talking in a general form. ठीक है, तो जनरल है तो वहां पर indefinite लगेगा, indefinite आपका a या फिर an लगेगा. तो यहाँ पर आपका द तब लगेगा जब आपने एक चीज को ऑलरेडी इंट्रोड्यूस कर दिया. फॉर एग्जाम्पल व्हाट द एग्जाम्पल दैट आई हैव गिवन यू इन द प्रीवियस क्लासेस, when you start a story, so when the starting is you are introducing the character first. So once upon a time there was a girl in a village. She used to go to market every day. The girl used to buy chocolates from the shopkeeper. Now in the third sentence, when you're mentioning the girl, it means that you are referring to the same girl that has been mentioned earlier, that has been introduced earlier. Understood? तो यहाँ पर आपका द कहाँ लगेगा? when you're speaking about a particular person or thing or that has already been introduced. जो person है, जो object है, जो thing है, उसको पहले ही introduce कर दिया गया है, then you are using the in the further sentences. Now there's an exception about this in the following lines. Exception क्या है? See the first conversation, जो first conversation है उसमें लिखा है कि John said, I'd like a glass of orange juice, please. John said, I'd like a glass of orange juice. यहाँ पर जो एग्जाम्पल है आपका, Susan says, I put the glass of juice in the counter on the counter already. यानी कि जिस glass of juice को John ने मांगा, John demanded, Susan has put that particular glass of juice on the counter. Now here, if you move forward, it is written, then when you use a modifier, what is a modifier? It might be an adjective or adverb. But since we are talking about noun, आप द और अ कहाँ लगाते हैं? नाउन के आगे लगाते हैं. So a word that is followed by an article is noun. So we are talking about nouns here. So noun का modify कौन करता है? Adjective करता है. So when there's an adjective present in this sentence before your noun, okay, वहां पर आप
इस सिचुएशन में, यानी कि जब आप एक चीज रेफर कर चुके हैं पहले, दोबारा लिखते हैं तो द लिखते हैं, बट यहाँ पर अगर आपका आर्टिकल और नाउन के बीच एक एडजेक्टिव प्रेजेंट है, व्हेन अ मॉडिफायर अपीयर्स बिटवीन द आर्टिकल एंड द नाउन, देन वहां पर आपका जो आर्टिकल रहेगा वो इंडेफिनेट ही रहेगा, यानी कि आप वहां पर द नहीं लगाएंगे. फॉर एग्जाम्पल, I'd like a big glass of orange juice, please, John said. I put a big glass of juice on the counter already, Susan said. So here, यहाँ पर आपका क्या आ रहा है? Big glass of juice. That means the glass of juice, that was your noun, जिसके आगे आप द लगा रहे थे. After introducing, before the noun, there's an adjective present. That means article और noun के बीच में एक adjective आ गया. And because of that adjective, you are not using the, even though the object is already introduced. जो object है वो already introduce कर दिया गया है, उसके बावजूद आप यहाँ पर the नहीं लगाएंगे. Any doubt in this? Is there any doubt regarding this? मैम. Oh, yes. मैम आप जो वो पीडीएफ जो असाइनमेंट दिए थे उसका पीडीएफ मिल नहीं रहा है, तो दोबारा भेज सकते हैं क्या? Okay, I'll send it again, since a lot of students are saying that they are not able to get the PDF. So I will send Yes, it again, okay? यस मैम, जो आप Okay. असाइनमेंट थे उसका पीडीएफ दोबारा भेज दीजिएगा. Okay, I will send it again. Yes, थैंक यू. okay. So next is, when a singular noun is meant to represent a whole category. Now, if you look here carefully, यहाँ पर आपका जो रूल बता रहा है, रूल ये बता रहा है कि आपका जो नाउन है वो सिंगुलर होना चाहिए, and it is meant to represent a category or a class. Now, a similar statement was made when you were seeing the rules for using a और an, यानी कि आप जब indefinite articles use करने का रूल पढ़ रहे थे, वहां पे भी ये एक रूल था कि when a singular noun is used to refer to the whole class, you are using a in front of that. ठीक है, एग्जाम्पल बताती हूँ so that you can remember what we are talking about. A vehicle must be insured. This was one of the example and that rule. तो यहाँ पर इसका a vehicle का मतलब क्या था? A vehicle means any vehicle or all vehicle. All vehicle or any vehicle must be insured is translated, or you can say is can be written in another format. A vehicle must be insured. Now similar way में यहाँ पर क्या बोल रहा है कि सेम वे में सिंगुलर नाउन जो रहेगा वो अगर किसी क्लास को या कैटेगरी को रिप्रेजेंट कर रहा है तो वहां पर हम द लगाएंगे. So where can you define, you can say the difference, कहाँ पर आपको पता चलेगा कि वहां पर अ लगाना है या द लगाना है when the word is representing the category or class? Can anyone tell me where is the difference between that and that? जो हमने पहले पढ़ा था उसमें एग्जाम्पल था a vehicle must be insured, which meant all vehicles और any vehicle, यानी कि वो vehicle जो था वो पूरे क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा था. सिमिलर वे में यहाँ पर जो एग्जाम्पल्स हैं यहाँ पर भी वो रिप्रेजेंटेशन सेम है. दैट मीन्स इट इज रिप्रेजेंटिंग योर क्लास और कैटेगरी. सॉरी, तो यहाँ पर आपका जो क्लासिफिकेशन हो रहा है, ठीक है, जो कैटेगरी आप बता रहे हैं, जो कैटेगरी आपको बताई गई है उसमें क्या अंतर है जो वहां पर नहीं था. when you were referring to the singular noun, जब आप वहां पर ए और एन लगा रहे थे, जब आपका क्लासिफिकेशन हो रहा था, जिस क्लास को आप रेफर कर रहे थे वो बहुत ही ब्रॉड क्लासिफिकेशन है. दैट मीन्स कि व्हीकल कुछ भी हो सकता है, राइट? ऑटो भी हो सकता है, बाइक भी हो सकता है, स्कूटी भी हो सकता है, कार भी हो सकता है, ट्रक भी हो सकता है. एनी व्हीकल दैट इज मूव ऑटोमोबाइल. अंडरस्टूड? यहाँ पर जहां पर आपको द लगाना है एक सिंगुलर नाउन के आगे जो एक क्लास और कैटेगरी को रिप्रेजेंट कर रहा है,
वो क्लास और कैटेगरी जो होगा वो बहुत ही स्पेसिफिक होगा। यानी कि अगर मैं किसी व्हीकल के आगे द लगाना चाहती हूँ तो मुझे वो व्हीकल स्पेसिफाई करना होगा, उसका सब कैटेगरी बताना होगा, एक बहुत ही पर्टिकुलर कैटेगरी बताना होगा कि उस पर्टिकुलर कैटेगरी के व्हीकल्स की मैं बात कर रही हूँ। फॉर एग्जाम्पल, द टू व्हीलर राइडर्स मस्ट वेयर हेलमेट। यहाँ पर एग्जाम्पल में द टू व्हीलर राइडर यानी कि मैंने स्पेसिफाई कर दिया कि व्हीकल का जो बहुत ही ब्रॉड क्लासिफिकेशन है, एनी ऑटोमोबाइल इज अ व्हीकल, तो वहां पर ऑटोमोबाइल का जो ब्रॉड क्लासिफिकेशन है उसकी जगह एक सब क्लासिफिकेशन या सब कैटेगरी हमने ले लिया टू व्हीलर्स के लिए। जो भी टू व्हीलर्स हैं उनको हमने क्या करना है, हेलमेट पहनाना है। ठीक है, जो भी टू व्हीलर राइड करते हैं वी हैव टू पुट गिव हेलमेट टू देम, दे हैव टू वेयर हेलमेट फॉर देयर प्रोटेक्शन। तो वहां पर जब आप क्लासिफाई कर दे रहे हैं किसी कैटेगरी को, उस जगह पे आप द लगा सकते हैं, बिकॉज यू आर specifying particular category in that situation. Okay, so in similar way यहाँ पर जो example लिखा है, the dog is a faithful animal. Animal is a very broad classification and in that classification आप किस type of animal की बात कर रहे हैं, dogs की बात कर रहे हैं। यानी कि एक बहुत broad classification में से एक particular सब classification के बारे में आप represent कर रहे हैं इस sentence में। So that is why यहाँ पर आप the लगा सकते हैं। Understood? Similar example, the banyan is a kind of fig tree. Fig tree है, इसका क्या मतलब है? Fig tree है, fig tree एक type of broad classification है type of trees में, जिसके अंडर banyan आता है, जो कि एक बहुत ही specific particular category है। Understood? Any doubt regarding this? यहाँ पे द क्यों आया, सबको समझ में आया? ओके, चलिए तो थर्ड नंबर इज व्हेन यू आर मेंशनिंग अ नेम ऑफ बिल्डिंग, गल्फ, रिवर और ओशियन। ठीक है, यानी कि आप जब भी किसी बिल्डिंग का नाम ले रहे हैं, सॉरी किसी ओशियन का नाम ले रहे हैं, किसी गल्फ का नाम ले रहे हैं, सी का नाम ले रहे हैं, दैट मीन्स सी इट इज पर्टिकुलरली व्हाट, प्रॉपर नाउन। एक तरह से ये प्रॉपर नाउन ही है। जब आप किसी बिल्डिंग का नाम ले रहे हैं, गल्फ का नाम ले रहे हैं, रिवर का नाम ले रहे हैं, ओशियन का नाम ले रहे हैं, दैट मीन्स यू आर नेमिंग समथिंग। ठीक है, तो नाउन है, प्रॉपर नाउन है, दैट मीन्स यू हैव टू पुट द बिफोर देयर नेम। ओके, यहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपको नहीं पता है। द टाइगर, द यमुना, द रिवर, द पर्शियन गल्फ। ठीक है, whenever you're naming a proper noun, that means you have to put the before them. Understood? समझ में आ गया सबको? Okay, so moving on, the is used before superlative. What is superlative? Superlative क्या है, कोई मुझे बता सकता है? What is superlative? The जो है, this rule says that the is used before a superlative. What is a superlative? You have examples here. You can take the help of examples. What is a superlative? Can I not get the answer for this? What is a superlative? Ma'am, please repeat the question.
I want to know what is the meaning of superlative. Superlative का मतलब क्या होता है? यहाँ पे जो ये वर्ड लिखा है superlative, उसका क्या मतलब होता है? Have you ever heard this word? मैम द कभी हाईएस्ट सुना है क्वालिटी ये? और डिग्री। Yes, the comparison, ठीक है। जब मैंने आपको एडजेक्टिव पढ़ाया था तो ये चीज बताया था, the highest quality of the highest level of comparison is made by the using the word superlative form of your adjective. जब आपके एडजेक्टिव के साथ आपको ये कंपैरिजन करना होता है, हाईएस्ट लेवल का कंपैरिजन करना होता है, तब आप सुपरलेटिव वर्ड्स यूज करते हैं। अंडरस्टूड? सो हियर इन द एग्जांपल, शी इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन आवर कॉलेज। यहाँ पर मोस्ट जो है, सिंस ब्यूटीफुल डज नॉट मॉडिफाई इनटू अ सुपरलेटिव लेवल, तो यहाँ पर उसकी जगह, उनको मॉडिफाई करने की जगह आपने मोस्ट यूज किया है। ठीक है। सिमिलर वे में the darkest cloud has a silver lining. Darkest can be modified. That means dark आपका adjective है, darker आपका comparative degree of adjective है, darkest आपका superlative degree of adjective है। So when you're comparing, ठीक है, comparison किस फॉर्म में आप कर रहे हैं? superlative में कर रहे हैं, यानी कि highest level of comparison. So that is why darkest लगाया है, most लगाया है। तो जब आप सुपरलेटिव कंपैरिजन करते हैं किसी चीज के साथ, किसी ऑब्जेक्ट के साथ, किसी पर्सन के साथ, तो आप वहां पर जब कंपैरिजन जहां हो रहा है, ठीक है, स्पेसिफिकली जहां कंपैरिजन हो रहा है, शी के साथ आपको नहीं लगाना है, क्लाउड के साथ डार्केस्ट लगा है, इसीलिए वहां पर सिल्वर लाइनिंग के साथ नहीं लगेगा। यहाँ पर जो सिल्वर लाइनिंग है इसके साथ नहीं लगेगा। जहां पर आपका कंपैरेटिव वर्ड लिखा हुआ है, सुपरलेटिव कंपैरिजन के किया जा रहा है, दैट मीन्स द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल, यानी कि मोस्ट ब्यूटीफुल वहां कंपैरिजन हो रहा है, इसीलिए वहां पर द लगेगा। द डार्केस्ट क्लाउड, क्लाउड जो है कितना डार्क है? डार्केस्ट है, सबसे ज्यादा डार्केस्ट है। तो वेर यू आर बीइंग कंपेयर्ड, जहां कंपैरिजन हो रहा है वहीं पर आपको द लगाना है। अंडरस्टूड? सो नेक्स्ट इज व्हेन यू आर मेंशनिंग अ प्लेस, ठीक है, व्हेन यू आर सॉरी द मेंशनिंग द नेम ऑफ प्लूरल आइलैंड, ठीक है, कुछ ऐसे नाम जिनके आइलैंड्स के नाम या माउंटेन रेंजेस के नाम या माउंटेन चेन ऑफ माउंटेन्स के नाम, कंट्रीज के नाम जो कि प्लूरल में है, जैसे नेदरलैंड्स हो गया, फिलीपींस हो गया, हिमालयाज हो गया, ठीक है, दीज आर इन प्लूरल फॉर्म बट स्टिल दीज आर द नेम ऑफ specific places. Okay, these are the names of specific places. That is why यहाँ पर द लगेगा उनके नाम के आगे। Now here it is written rule. यहाँ पर एक स्पेसिफिकेशन लिखा है। क्या स्पेसिफिकेशन लिखा गया है? जब आप कंट्री का नाम लगा रहे हैं, ठीक है, जब आप किसी कंट्री का नाम लिख रहे हैं, तो यू माइट हैव हर्ड समवेयर, ठीक है, ये चीज आपने कहीं देखी होगी, यूनाइटेड स्टेट्स का जब नाम लेते हैं तो उनके नाम के आगे द लगता है, बट इंडिया का नाम जहां पर लिखते हैं, मोस्ट केसेस में इंडिया का नाम के आगे द नहीं लगता है, ठीक है। दिस इज द रीजन वाई, ठीक है, यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है कि क्यों यहाँ पर द नहीं लगता है। बिकॉज when you're mentioning the names of the country which contains states, kingdom और republic, वहां उसके आगे आप the use करेंगे। This is the rule that has been established. जैसे यूनाइटेड स्टेट्स में स्टेट्स है, इसीलिए वहां पर द लगता है यूएसए के आगे। यूनाइटेड किंगडम में किंगडम है तो यूके के आगे भी द लगता है, ठीक है। So that kind of name which contain country's name that contains state, kingdom or republic. Understood? He went to Mexico. He went to Mexico. यहाँ पर द नहीं लगा है because the name does not contain state, kingdom or republic. यहाँ पर द लगा है because the name contains state. Understood? Okay. Next is when the is used when the name consists of adjective plus noun. यहाँ पर जो नाम है, the name that is being referred to here will contain an adjective and a noun. For example,
द अरेबियन गल्फ, द न्यू फॉरेस्ट, द हाई स्ट्रीट। सॉरी, यहाँ पर जो द अरेबियन गल्फ आपको दिख रहा है, यहाँ पे अरेबियन जो है, अरेबियन का है क्या है आपका? अरेबिया इज द नेम ऑफ अ प्लेस, so that is your noun, but it has been modified। ठीक है, अरेबिया को मॉडिफाई करके अरेबियन बना दिया है, यानी कि अरेबियन जो हो गया आपका क्या? एडजेक्टिव हो गया। तो एडजेक्टिव प्लस नाउन, गल्फ इज योर नाउन। तो अरेबियन गल्फ इज अ प्लेस बिफोर विच, जिसका नाम के आगे आपको द लगाना है। अंडरस्टूड? सी यहाँ पर जब 6th और 7th रूल आप देखेंगे, इसमें लिखा है कि एडजेक्टिव प्लस नाउन है तो उसके आगे द लगाना है, या फिर नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन है तो उसके आगे भी द लगाना है। इसका मतलब क्या हुआ कि देखिए, जहां पर मैंने कहा था कि जब सुपरलेटिव कंपैरिजन होता है तो क्या होता है कि जब आप कंपैरिजन कर रहे हैं तो कुछ वर्ड्स को आप सुपरलेटिव फॉर्म या कंपैरेटिव फॉर्म में चेंज नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल ब्यूटीफुल हो गया, तो ब्यूटीफुल जो वर्ड है उसके आगे आप ER नहीं लगा सकते, IEST नहीं लगा सकते, उसको आप ब्यूटीफुल के आगे आप मोस्ट या मोर लगा के कंपैरिजन करते हैं। में यहाँ पर जो अरेबियन गल्फ है, ठीक है, अरेबियन इज transformed, Arabia is transformed into an adjective to become Arabian Gulf. Understood? लेकिन यहाँ पर जो ये नाम है, ठीक है, द केप ऑफ गुड होप, द गल्फ ऑफ मैक्सिको, द गल्फ ऑफ मैक्सिको जो है, मैक्सिको को आप एडजेक्टिव में चेंज कर सकते हैं, पर यहाँ पर किया नहीं गया है। ठीक है, व्हेन द नेमिंग वाज डन, यहाँ पर चेंज नहीं किया गया है। तो जब एडजेक्टिव में नहीं चेंज किया है, पर आपको उसी फॉर्मेट में लिखना है। ठीक है, दैट रिप्रेजेंट द सेम थिंग। गल्फ ऑफ मैक्सिको मतलब क्या कि मैक्सिको के पास जो गल्फ है या जो मैक्सिको के जुरिडिक्शन में आता है गल्फ, अरेबियन गल्फ मतलब क्या, जो अरेबिया के पास है या जो अरेबिया के जुरिडिक्शन में आता है। तो दोनों का मीनिंग सेम है, बट वन इज in the form of adjective and one is in the form of noun. Okay, यहाँ पर अरेबिया को अरेबियन कर दिया गया है एडजेक्टिव के फॉर्म में डालकर, यहाँ पे नाउन को नाउन ही रखा है। द गल्फ ऑफ मैक्सिको में गल्फ भी नाउन है, मैक्सिको भी नाउन है। अंडरस्टूड? एनी डाउट? नो मैम। ओके, नेक्स्ट इज योर व्हेन द डायरेक्शंस आर मेंशन। सी यहाँ पर दोनों चीजें होंगी। ठीक है, डायरेक्शन के साथ साथ आप एक सर्टेन नाउन भी मेंशन कर रहे हैं, जैसे नॉर्थ पोल हो गया, साउथ पोल हो गया, ईस्ट वेस्ट एंड हो गया, इंडीज हो गया, ईस्ट इंडीज, वेस्ट इंडीज, ये सारे जो नाम है ये डायरेक्शन के साथ एक नाउन को लगा दिया गया है, जिसकी वजह से वहां पर उनके आगे द लगता है। अंडरस्टूड? सो व्हेन यू आर मेंशनिंग अ डायरेक्शन, जब आप मेंशन कर रहे हैं किसी डायरेक्शन को, नेक्स्ट रूल आप देख सकते हैं, रूल नंबर 9, व्हेन यू आर मेंशनिंग अ डायरेक्शन ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, तो उसके आगे भी आप द लगाएंगे। फॉर एग्जांपल यू कैन सी दिस सेइंग द सन राइजेस इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट। तो सन राइजेस इन द ईस्ट, सेट्स इन द वेस्ट, दिस इज द डायरेक्शन। क्योंकि नेम ही है ये एक तरह का, प्रॉपर नाउन ही है, बिकॉज इट इज नेमिंग द डायरेक्शन। ओके, तो जहां पर नाम आ रहा है वहां पर आपका प्रॉपर नाउन है तो द लगेगा, बिकॉज इट इज स्पेसिफाइंग समथिंग। ठीक है, स्पेसिफाई कर रहे हैं कुछ। नेक्स्ट इज व्हेन यू आर मेंशनिंग द नेम, द फैमिली नेम। या फैमिली नेम क्या होता है? व्हेन यू, जब आपके फैमिली के सरनेम से आपको बुलाया जाता है, दैट मीन्स कि आपकी पूरी फैमिली को रेफर किया जाता है। इफ योर सरनेम इज बीइंग मेंशन्ड, दैट मीन्स योर होल फैमिली इज बीइंग मेंशन्ड इन दैट पर्टिकुलर एरिया। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल द अंबानीज, द बिरलास, द रेमंड्स, यहाँ पर एग्जाम्पल में गिवन है। तो यहाँ पर एग्जाम्पल में गिवन होने के लिए क्या लिखा गया है, यहाँ पर मेंशन जब किया जा रहा है दोनों नामों, सब नाम को द के साथ, दैट मीन्स every member of the Ambani family is being mentioned, every member of Billa's family is being mentioned, every member of Raymond family is being mentioned. तो यहाँ पर इस फॉर्मेट में you can mention the whole family using the surname
यहाँ पर जब सरनेम का यूज हो रहा है तो उसके आगे द लगेगा, द रेमंड, द अंबानीज, द बिरलास। अंडरस्टूड? प्लूरल ऑब्वियसली एक से ज्यादा लोग हैं इसीलिए यहाँ पर प्लूरल है, ठीक है। रेमंड्स लगा है, अंबानीज लगा है, बिरलास लगा है, बिकॉज यू आर मेंशनिंग द होल फैमिली टुगेदर। अंडरस्टूड? Next is when you're mentioning the renowned books. Renowned books means the book that is famous, ठीक है, जो सब कोई जानते हैं उनके उस बुक के बारे में। Whatever has been written in that book is very much known to most of the people. जैसे the Quran, the Ramayana, the Mahabharata. These are something that is known to a lot of population all over the world. ठीक है, तो जब renowned books का आप mention करेंगे name, उसके आगे आप द लगाएंगे। Next is your before such common noun that are names of things unique of their kind. यहाँ पर मेंशन करने का क्या मतलब हुआ, इस चीज का क्या मतलब हुआ? कॉमन नाउन बोल रहा है, यानी कि आपका जो नाउन रहेगा वो प्रॉपर नहीं रहेगा। जैसे कुरान है वो अंबानीज है, प्रॉपर नाउन है। ईस्ट वेस्ट इज योर नेम ऑफ डायरेक्शन, प्रॉपर नाउन है। बट यहाँ कह रहा है कि आपको कॉमन नाउन में, देयर इज अ कॉमन नाउन इन योर सेंटेंस बट इट रिप्रेजेंट्स व्हाट, यूनिक ऑफ देयर काइंड, यानी कि जिस काइंड में वो प्रेजेंट है, जिस कैटेगरी में वो फॉल करते हैं, उस कैटेगरी के वो यूनिक हैं। ओके, दे आर यूनिक इन दैट पर्टिकुलर कैटेगरी। फॉर एग्जाम्पल द सन, the earth, the sky, the moon, the world, the sea, the environment. Now tell me, why are they known as common noun but unique as in their own kind? क्यों सन को कॉमन नाउन बोला जा रहा है और उनको यूनिक इन देयर ओन काइंड बोला जा रहा है? Ma'am, because they are universal. They are universal, that is these are all universal bodies only. The sun, the earth, these are all universal bodies, but the thing is ki, how many sun do you know? Only one. Only one. Means But you must have also heard that sun is nothing but the biggest star in the sky, right? It is nothing Yes, but the ma'am. biggest star. That means कि उनका ये एक कॉमन नाउन ही है एक तरह से। सन इज नथिंग बट अ स्टार, स्टार एक से ज्यादा है, कितने सारे हैं, इट इज अ कॉमन नाउन, बट दे आर यूनिक इन देयर काइंड, यानी कि सन जो है उससे ज्यादा बड़ा स्टार आपको कहीं नहीं मिलेगा, उसके जैसा स्टार कहीं आपको नहीं मिलेगा। सो दे आर यूनिक इन देयर ओन काइंड। द अर्थ, why do we call it the earth? Because there are a lot of planets, but only the earth contains the life, or only the earth contains environment that can inhibit humans, anything that is unique from all the other ends। ठीक है, जितने भी अदर प्लैनेट्स हैं उनसे ज्यादा यूनिक है आपका अर्थ। द मून, द स्काई, द वर्ल्ड, एवरीथिंग इज इससे ज्यादा। इसके अलावा और भी आपको द सी जो है, ठीक है, सी आपको और भी मिलेंगे, बट अगर आपको स्पेसिफिक नाम बोल रहे हैं, सी क्या मतलब क्या होता है कि एक पर्टिकुलर वाटर बॉडी, राइट, एक पर्टिकुलर वाटर बॉडी तो और भी ज्यादा होता है, बट सी जो है, सी का जो कैटेगरी है उसमें वो यूनिक है। ओके, द इन्वायरमेंट हो गया, इन्वायरमेंट बहुत तरह के इन्वायरमेंट होते हैं, तो हम जिस बारे में बात कर रहे हैं वो पर्टिकुलर एक इन्वायरमेंट है, वो आपका बायोस्फीयर हो सकता है, वो एक यू कैन से स्टडी इन्वायरमेंट हो सकता है, ऑफिस इन्वायरमेंट हो सकता है, whatever environment you are mentioning, it is specific. Okay, for example, you can look in the example, the sky is dark and the moon is shining. Sky is dark and the moon is shining. यहाँ पे द लगाने का मतलब यही हुआ कि स्काई जो है हमें दिखता उतना ही है, पर स्काई तो बहुत ज्यादा बड़ा है, राइट? दैट इज व्हाई इट इज known as unique, because we only know this much part of it. The moon जैसा कोई, obviously आपको पता है मून हमारा बहुत सारे प्लैनेट्स में और भी ज्यादा होते हैं, but the moon that we look on is only this much what we see, right? The sea seems calm today, ठीक है?
Yes, ma'am. अच्छा, it has given an exception. हाँ, it has given an exception also. यहाँ Good पर evening, एक ma'am. exception आपको given है. Good evening, बच्चे. It has given an exception also. There's an exception given in the example that we go to sea as sailor. यहाँ पर आपको द नहीं लगाया गया है, यानी कि सी के आगे द नहीं लगाया गया है. Can you give an example? Can you explain why? कोई मुझे एक्सप्लेनेशन दे सकता है कि यहाँ पर जो एक्सेप्शन है, वी गो टू सी एज सेलर. Ma'am, यहाँ because पर there are many seas, like बहुत सारे seas हैं. अगर कोई particular नाम mention होता तो यहाँ द लग सकता था. यहाँ पर देखिए, इसीलिए यहाँ पर ये कॉमन नाउन इसीलिए बन गया है because the sea that we go into as a sailor, वो कोई भी sea हो सकती है. और हमारे लिए for the humans there are a lot of seas. तो आप seas में sailor बन के जाते हैं, तो वो जो sea होगा, ठीक है, वो एक पर्टिकुलर सी नहीं होगा. आप किसी भी सी में जाएंगे, किसी भी रिवर में ओशियन में जाएंगे, तो आप एज अ सेलर ही जाएंगे. सो दैट इज व्हाई सी हियर इज नॉट अ पर्टिकुलर थिंग or particular object that you're referring to. You're referring to something in general, a water body that in which we can sail. Understood? जहाँ पर एक शिप को आप सेल करा सके, वो एक वाटर बॉडी का रेफरेंस यहाँ पर हो रहा है. सो दैट इज व्हाई इट इज अ जनरल. ओके ओके. सो बिफोर द मीटिंग एंड आई माइट रिमाइंड यू कि अगर बहुत लोगों को मेरे पास मैसेज आ रहे हैं कि आपको वो डॉक्यूमेंट्स नहीं मिल रहे हैं जो मैंने आपको भेजे थे वर्कशीट के लिए, तो मैं दोबारा से वो वर्कशीट आपको भेज दूंगी. यू हैव टू कंप्लीट इट बिफोर द एंड ऑफ दिस मंथ. ओके, इस मंथ के एंड से पहले यू हैव टू कंप्लीट इट. ओके ओके. इज देयर एनी डाउट रिगार्डिंग द थिंग्स दैट आई हैव टॉट यू टुडे? अभी तक जो पढ़ाया No, उसमें अगर कोई भी डाउट हो रहा है, घर जाके रिवाइज करो इस सब चीजों को. ठीक है, जो भी अगर डाउट हो रहा है या फिर आपको कुछ नए रूल्स मिल रहे हैं, देयर आर आल्सो रूल्स चेंजिंग इन दिस आल्सो. तो अगर आपको कोई रूल्स मिल रहे हैं या फिर कोई सेंटेंस मिल रहा है जहाँ पर एक्सेप्शन प्रेजेंट है या फिर कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है इस रूल को, यू कैन ब्रिंग अप इन द क्लासरूम एंड वी कैन हैव अ डिस्कशन रिगार्डिंग दैट. अंडरस्टूड? मैम, आप जो डॉक्यूमेंट सेंड करने वाली है वो हम लोग को पीडीएफ के फॉर्म में आपको सेंड करना है व्हाट्सएप पे ही, या फिर आप क्लास में देखेंगी? नहीं नहीं, क्लास में मुझे आप दे दीजिएगा. मैम, आप तो You बाईस come पे into बना the लिए. classroom. हाँ, क्लासरूम में ही देना है आपको आकर पेपर पे. यू हैव टू राइट इट डाउन. द आंसर्स यू हैव टू बी रिटन. ओके. नंबर का भी है मैम. मैम, आप बच्चे ऑनलाइन ही लाओगे उसके देखेंगी? बाद? नहीं नहीं, यू हैव टू ब्रिंग इट हियर. ओके मैम. Okay. Okay, then that's all for today. थैंक यू मैम.